جو ہم حلقے لگا کر بیٹھے تھے، یہ جو حلقے ہیں مسجد نبوی کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں روزانہ جو ہے حلقے لگتے تھے، اس زمانے میں بھی لگتے تھے، آج بھی الحمدللہ مسجد نبوی میں حلقے لگتے ہیں۔ اس کی ہم نے ایک نقل اتاری۔ ان حلقوں میں بٹھا کر کسی کا امتحان نہیں ہے کہ کسے پڑھنے آتا نہیں آتا، یہ دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے اندر احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ بھئی میرا قرآن کیسے صحیح ہو جائے۔ میرا قرآن صحیح ہوگا تو پھر میری نماز صحیح ہوگی، میری نماز صحیح ہوگی، میری زندگی صحیح ہوگی، میری زندگی صحیح ہوگی، میری دعائیں اللہ قبول کرے گی، میری دنیا بھی بنے گی، میری آخرت بھی بنے گی۔ اس کے لیے جو ہے حلقوں میں بیٹھ کر ماشاءاللہ ہمارے اندر احساس فکر پیدا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنے کا ہم فکر کریں گے بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن پاک کو تجوید سے سیکھنا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ قرآن شریف، دوسرا میری سنت ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، اس کو عمل کرنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور ساری دنیا میں اس کو پھیلانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور پھر پوری دنیا میں سنتوں کو زندہ کرنا۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے اور ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی۔ تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا، دیکھو تمہیں معلوم ہے میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اتنے ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا، اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکے میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نازل ہوئی۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے، صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا، نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے،
حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تم فضول خرچی کرتے ہو. انہوں نے عرض کیا ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازے کی نماز پڑھنے کی وصیت فرمائی. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی جن میں سے 4 ہیں. اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ. دوسرے یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے. تیسری یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اس سے اللہ تعالیٰ شانہ ناراض ہو جاتے ہیں. چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اتنی چیزیں بتائیں بھائی. آجو باجو ذرا ساتھی سو جاتے ہیں دیکھ لینا اپنے اڑوس پڑوسیوں کو بھی جگاتے رہنا. خود بھی جاگنا دوسروں کو بھی جگانا. خود بھی کھانا دوسروں کو بھی کھلانا. خود پینا دوسروں کو پلانا. خود جاگنا دوسروں کو خود سونا دوسروں کو بھی سلانا. سلانا نہیں سوتے سوتے دیکھو کیا حال ہو گیا امت کا. ہاں ابھی کتنا سوئیں گے. ابھی تو جاگنا ہے ساری امت کو جگانا ہے پوری انسانیت کو جگانا ہے. جگائیں گے انشاءاللہ. اور سے سننا تعلیم کے اندر جو ہے یہ نیت سے سننا کہ جو باتیں پڑھی جا رہی ہیں میرے لیے پڑھی جا رہی ہیں. ان باتوں پر میں عمل کروں گا اور ان باتوں کو میں دوسروں تک پہنچاؤں. اس نیت سے سنیں گے بھائی انشاءاللہ. خود عمل کی نیت سے سننا دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں جن میں سے 4 یہ ہیں. اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاویں یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ. دوسرے یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے. تیسرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اس سے اللہ تعالی شانہ ناراض ہو جاتے ہیں. چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے. ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قسم کا مضمون نقل فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاویں یا آگ میں جلا دیا جائے. دوسرے نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالی شانہ بری الذمہ ہیں. تیسری شراب نہ پینا یہ ہر برائی کی کنجی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. اول یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا گو تو قتل کر دیا جاوے یا جلا دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ کیا بھائی سونے والے کیا کر دیا جائے؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. 2 ہے بولے تو نہیں 2 مان لیو نہیں تو تم نہ سولی چڑھا دو. تم بولے کیا کرنا؟ سولی پہ چڑھنا. سولی چڑھ جانا. آگ میں ڈالے تو اللہ کتنے ہیں؟ اللہ قل هو اللہ احد. کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے اکیلا ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک. دوسرے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. والدین بولے تو ماں باپ. ہمارے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. تو گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے. فرما برداری کرنا ماں باپ.
تیسرا فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا. جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے. چوتھے شراب نہ پینا، یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے. پانچویں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے. چھٹا لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائیں. اور ساتواں اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے، بیماری وغیرہ، تو وہاں سے نہ بھاگنا. آٹھواں اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا. اس پر خرچ کرنا، دوستوں میں جا کو اڑانا. ہاں اڑیں گے، کیا ہونا بول با تجھے میں دلاتا ہوں. گھر میں کیا ابھی نہیں، گھر والوں پر خرچ کریں گے انشاءاللہ. کما کر کسے کھلانا؟ ہمارے گھر والوں پر خرچ کریں گے انشاءاللہ. اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا اپنے گھر والوں پر. نواں تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا. دسواں اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا. کیا کرنا؟ کس سے ڈرانا؟ اللہ سے ڈرانا. بھوت سے نہیں ڈرانا. ارے بھوت آ رہا ہے، بڈھا آ رہا ہے، بڈھی آ رہی ہے بولتے نہیں ہمیں. بچوں کو بڈھا بڈھی سے ڈر رہتا. اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرا. کس سے ڈرانا؟ وہ اللہ بڑا ہے، اسے کاما کرے تو اللہ انگار میں ڈال ہوتا. ایسا بچوں کو ڈرانا اللہ کی طرف ڈرائیں گے انشاءاللہ. فائدہ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ ان کو حدود شریعہ کے تحت میں کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے. بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی. آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی. جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں. حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے. بچہ غلط کام کرے فوراً کیا کرنا اسے؟ اور بچہ کر کو چھوڑ دے، ہاتھ سے چلے جاتا. بچپن سے اسے ہمیں کیا کرنا؟ ایمانداری سکھانا، سچائی سکھانا، اچھی عادتیں سکھانا. برے کام کرے آپ فوراً اسے روکنا ٹوکنا، سمجھانا نہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا، پیار سے محبت سے سمجھانا. سمجھیں گے انشاءاللہ. کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پھونسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی، ہمیں جراحی نہ کرایا جائے بلکہ لاکھ بچہ روئے منہ بنائے بھاگے، بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے. بہت سی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو. کب سے نماز کا حکم کرنا بھائی؟ 7 برس سے اسے کیا کرنا؟ بچے کو نماز کا حکم کرنا. 10 برس کی عمر میں نہیں پڑھا تو یہ تو نماز بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے. ایمان والے پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرض کرے؟ نماز پر کریں. قیامت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوتی. حدیث پاک میں فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا، ڈھا دیا، برباد کر دیا. تو نماز بہت امپورٹنٹ ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو، اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو. حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے، باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے 1 سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. 1 سا تقریباً 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے. ایک حدیث میں ارشاد ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے.
فضائل ذکر میں دو نماز کے بارے میں کتنی حدیثیں ہمارے سامنے. فضائل ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو کیا پڑھنا بھائی؟ صلی اللہ، درود شریف پڑھنا. جب بھی نام سنتے ہی ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں. اور اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں. کیا کرتا ہوں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اللہ کیسا معاملہ کرتے ہیں بھائی؟ جیسا ہمیں گمان کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا. اس لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کریں گے انشاءاللہ. اور پھر فرما رہے ہیں اس میں حدیث میں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ کو یاد کرے تو اللہ کہاں رہتی؟ ہمارے ساتھ ہو جاتی. آج ایمان والا گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ایمان والا میرا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو کیوں گھبرائے؟ میں تیرے ساتھ ہوں. کون ہوں؟ میں تیرے ساتھ ہوں. 7 زمین 7 آسمان کا میں رب ہوں. پوری کائنات میرے کنٹرول میں ہے. میں تیرے ساتھ ہوں. جب تک تو مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں تیرے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کو یاد کرتے رہے. کریں گے انشاءاللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ہم ذکر کرتے رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے. اور جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں. اب تو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سن رہی نہیں، اللہ کا ذکر سن رہی بول رہی، اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے بول رہی، دیکھو جی میرے بندے باللہ استماع میں جا کو بیٹھ کو میرا نام لے رہی، میری بڑائی کو سن رہی. دیکھو فرشتے ہمارا سامنے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہمارا ذکر، ہمیں فرش پر اللہ کو جو ہے یاد کر رہے ہیں، عرش پر اللہ ہم نہ یاد کر رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں آنے کی توفیق دی، اور اسی دین کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کی یاد کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. اور پھر فرمایا کہ اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، تعلیم کے 3 جز ہیں. تعلیم کے کتنے حصے ہیں؟ 3. سب سے پہلے تو جو ہے وہ تجوید کے حلقے، تجوید کے قرآن کو صحیح کرنا. نماز کے اندر ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کو جو ہے صحیح کرنا. اس کے حلقے ماشاء اللہ حلقے بنے ہوئے تھے، 100 سال کے بچے تھے. اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں صحیح تجوید، صحیح مخرج کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ حلقے اس کے لیے ہماری نمازیں قبول ہوں، ہماری جو ہے دعائیں قبول ہوں. وہ کب ہوں گی؟ جب ہمارا قرآن صحیح ہو. قرآن عربی زبان میں ہے، ہم جو ہے تھوڑا سا زیر زبر کی پیش کی غلطی کر دیں گے تو جو ہے وہ اس کے معنی غلط ہو جاتے ہیں.
बड़े गलतियां हो जाती हैं। तो उसके लिए ये एहसास पैदा किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अब वापस जाकर जमातों में 4-4 महीने निकल कर चिल्ला निकल कर उसको सही करना, अपनी आऊज़ू सही करना है, अपना बिस्मिल्लाह सही करना है, अपना सूरह फातिहा सही करना है। करेंगे भाई सब। दूसरा हिस्सा वो किताब को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह किताब की तालीम भी हुई, हल्कों से पहले भी हुई, हल्कों की बात भी हुई। और तीसरा हिस्सा 6 सिफात का मुज़ाकिरा है। तीसरा हिस्सा कौन सा? 6 सिफात का मुज़ाकिरा। बल्कि अभी मुल्क का मशवरा था, उसमें जो है हाजी फारूक अहमद साहब ने अपनी कारगुजारी सुनाई कि वो जमात में थे, जो है कारी बदरुद्दीन साहब पुराने लोगों में से, उनके साथ ये चिल्ले में चले तो जो है इनका नंबर आया हाजी साहब का, तो फिर 6 नंबर बोलो। तो हाजी साहब ने कहा भाई जो है 6 सिफात हैं, 6 सिफात का मुज़ाकिरा शुरू। तो वो बयान के बाद कहते वो कारी बदरुद्दीन साहब ने वो हाजी साहब का हाथ मांगा, अब मैंने कब सिखाया तुम्हें ये? जवाब कब था? तो उन्होंने पूछा, बदरुद्दीन साहब थे जो पुराने लोगों में से थे, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में, मौलाना यूसुफ साहब के ज़माने के, उन्होंने जो है हाजी साहब से पूछा मैंने तुझे कब सिखाया था 6 सिफात? अरे बाबा मैंने कहा चंद सिफात। कितने सिफात भाई? चंद सिफात। तो हाजी साहब कहने लगे मैं अड़ गया, मैंने कहा 6 ही तो बोल रही ना, उसमें 6 बोलने में क्या हर्ज है, चंद में 6 में क्या हर्ज है? तो हाजी साहब कहने लगे कारी बदरुद्दीन साहब ने मुझे कहा बाबा बहुत फर्क पड़ता है, लोग सोचेंगे भाई इस्लाम में तो 5 फराइज हैं, इस्लाम में तो 5 फराइज हैं, कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये तबलीग वाले ये 6 कहाँ से ला लिए? लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या नया दिन है क्या, ये नई बात, ये नई बात, नई बात। बोले नहीं चंद सिफात बाबू, तो अभी जो है चंद सिफात का मुज़ाकिरा होगा इंशाअल्लाह। अब ये कोई बयान का उन्वान नहीं है, ये 6 सिफात ये अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए सिफात, 3 सिफात का नाम है। और सिफात के आने से आदमी कीमती बनता है, इसके लिए इसको बयान जो है वो करने के लिए नहीं सीखना है, बल्कि इस ज़िंदगी को, इस सिफत को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने के लिए सीखना है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो इसकी तमहीद है। तो तमहीद क्या है इन सिफात की? कि सहाबाई किराम ने मुहम्मद रसूलुल्लाह बहुत सारे सिफात सीखे थे, उसमें से चंद सिफात ऐसे हैं जिस पर हम अमली मश्क करेंगे तो पूरे दिन पर चलना आसान है। ये 6 सिफात पूरा दिन नहीं है और इसके बगैर भी दिन नहीं है। इब्राहिम साहब फरमाते हैं कि भाई ये 6 सिफात पूरा दिन नहीं है और इसके बगैर भी दिन नहीं है, और ये 6 सिफात पूरे दिन को घेरे हुए हैं। इसका पहली सिफत कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर तकरीबन 70% कुरान आ गया। कितना आ गया भाई? इसको फैलाते जाएंगे, पहले नंबर को फैलाते जाएंगे। मौलाना कासिम कुरैशी साहब थे बुजुर्ग हमारे कर्नाटक के, तो वो फरमाते थे ये 6 सिफात ये 6 नंबर नहीं है, बल्कि ये 6 समंदर हैं। ठीक है भाई? मौलाना कासिम साहब कहते थे, मतलब हमारे सुल्तान शाह में इज्तिमा में मौलाना का बयान था शफीदारी में हमारी, उसमें मौलाना बयान कर रहे थे, हम लोग करके सुन रहे थे सामने। तो जो उसमें मौलाना फरमाया ये 6 सिफात ये सिर्फ 6 नंबर नहीं है, बल्कि ये 6 समंदर हैं। फिर मिसाल दी मौलाना ने कि भाई जिस तरह समंदर में कितने खतरे पानी है, समंदर कितना गहरा है, ना आदमी तोल सकता है ना नाप सकता है, इसी तरह ये सिफात है। जैसे मैंने कहा कि फिर मौलाना ने मिसाल दी कि देखो मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दी, मौलाना ने, मौलाना कासिम साहब ने मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दी कि मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी को 1000 साल की उम्र मिल जाए और वो पूरा 1000 साल दीन का इल्म सीखने में लगा दे, तो मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1 साल की मेहनत पर इल्म के उसे इल्म एक समंदर है, ये 100,000 साल भी अगर लगा दे दीन का इल्म सीखने के लिए, तो मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसे इल्म का समंदर हासिल नहीं होगा
बल्कि इल्म के समंदर के चंद खतरे हासिल होंगे। श्रवण का पहला नंबर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 6 नंबर बयान किए। जो है बंगले वाली मस्जिद में तो जो है एक मेवाती को बुला के पूछा, क्यों जे समझ में आ गए 6 नंबर? तो मेवाती गांव वाले कहने लगे, हाँ हजरत जी समझ में आ गए। तो मौलाना ने उस सर पे हाथ मार दिया। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जी हमें तो पहला नंबर भी समझ में नहीं आया अभी तक। क्या समझ में नहीं आया? वो पहला नंबर ही समझ में नहीं आया जी। तो इसके लिए ये कोई बयान का उन्वान नहीं है, बल्कि इस कैफियत को बनाना है, इस कैफियत को बनाना है। सिफात अमली तौर से हमारी इसके अंदर, इसके लिए कहते हैं कि हम तरतीब से उसका मुज़ाकिरा करें। ये मुज़ाकिरा है, बयान वगैरह मुफ्ती साहब ये करेंगे। तो ये जो है मुज़ाकिरा है 6 सिफात का। इसके लिए कहते हैं कि 6 सिफात का मुज़ाकिरा हम लोगों ने जो है मियाँ जी मेहराब साहब से सुना। मतलब जब हम सूबे के मशवरे में सूबे के काफिले के साथ जाते थे तो वहाँ सब सारे आलम के साथियों के सामने वो 6 इन सिफात का मुज़ाकिरा होता था और ये कहा जाता था, देखो तुम भी इस तरतीब से करो। उसमें तरतीब ये कहते थे मियाँ जी कि देखो सबसे पहले तो उस सिफत के फजाइल बयान हो, इसके फजाइल बयान करें। पहली सिफत के जो है क्या फजाइल जो है, पहली सिफत का पहले मकसद बयान करना, उसके बाद फजीलत बयान करना, उसके बाद हासिल करने का तरीका बयान करना। सिफात के मुज़ाकिरे में वो 3 चीजें मियां जी मेहराब कहते थे, हमने मौलाना इलियास साहब से इस तरह से सीखा है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से हमने इस तरह से सीखा है कि सिफात के मुज़ाकिरे में सबसे पहले मकसद बयान हो सिफत का, और दूसरा उसकी फजीलत बयान हो, तीसरा उसके हासिल करने का तरीका बयान हो। ये सिफत जिंदगी में आएगी कैसे, वो क्या तरीक़ेकार है जिससे जो है, अब वो 3 लाइन की मेहनत है। हर सिफत को जिंदगी में लाने के लिए कितने लाइन की मेहनत है? 3 लाइन की मेहनत है। उम्मत में चल फिर के जो है उसकी दावत देना और तालीम के हलकों में बैठ के उसके फजाइल को सुन कर उसका यकीन पैदा करना और उसकी मशक करना और रात में उठकर अल्लाह से दुआ मांगना। सिफात को अपनी जिंदगी में लाने का तरीका। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये पहला सिफात मौलाना इब्राहिम साहब इसलिए फरमाते थे कि जो है फरमाते हैं कि ये जो 6 सिफात हैं ये जो है पूरा दीन नहीं है और इसके बगैर भी दीन नहीं है, और ये 6 सिफात पूरे दीन को घेरे हुए हैं। इसमें पहली सिफत कलमे जो है कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे क्या चाहा जा रहा है? पहली सिफत का क्या मकसद है? कि किसी से कुछ नहीं होता, एक अल्लाह से सब कुछ होता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में 100% कामयाबी है और गैरों के तरीके में 100% नाकामी है। पहली सिफत का मकसद किसी से कुछ नहीं होता, एक अल्लाह से सब कुछ होता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अल्लाह ने दोनों जहां की कामयाबी रखी है और गैरों के तरीके में 100% नाकामी। अल्लाह ताला जो है कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने अपने दिल में जो है अल्लाह की ज़ात का यकीन पैदा कर लिया, जिसके दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कामयाबी है, ये यकीन आ गया तो फरमाया वो तो कामयाब हो गया। जिसने अपने दिल को बना लिया, जिसने अपने दिल में अल्लाह जो है अल्लाह से होता है, किसी से कुछ नहीं होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कामयाबी है, गैरों के तरीके में नाकामी है। जो ये यकीन अपने अंदर ला लिया, अपने अंदरून को बना लिया, अपने दिल को बना लिया, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर ली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा कर ली, अल्लाह ताला ने जो है वादा किया है क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, वो शख्स कामयाब हो गया, बामुराद हो गया जो अपने दिल को बनाए। ईमान की जगह दिल है, ईमान की जगह वो दिल है, ईमान की जगह दिल है। कहते हैं ना क्या जो है वो नात पढ़ने वाले कहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तो है मदीने में, वो रहते कहाँ हैं? मोमिन के सीने में।
इमामुल अंबिया, आराम तो कर रहे मदीने में, आपका घर है मदीने में, लेकिन वो कहाँ रहते हैं? अरे बोलो भाई, मोमिन के दिल में रहते हैं। ये यकीन कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है, हक है, होके रहेगी। गैरों के तरीके में 100% नाकामी है। वरफ़ाना लका ज़िक्र, क्या कहा अल्लाह ने कुरान में? अरे बोलो भाई, बोलते रहोगे तो अंदर उतरेगी ना भाई। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह? वरफ़ाना लका ज़िक्र, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी इज्जत को बढ़ा दिया है, हमने आपके मकाम को, आपके मर्तबे को बुलंद कर दिया है। हमारे नाम के बाजू हमने आपका नाम लगा दिया है। जहाँ मौजन अल्लाह की गवाही होने की गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वहाँ मौजन को क्या हुक्म है? अरे बोलो भाई, अजान के कलमा बोलो, क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वरफ़ाना लका, जब कुरान की पहले आयत उतरी, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर में लिखा है कि जो कुरान उतरी जो है, सबसे पहली आयत उतरी, चंद दिनों के लिए कुरान उतरना बंद हो गया। तो मक्के के जो काफर थे वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छेड़ने लगे और आपस में हंसी मजाक करने लगे कुरान का। कहने लगे जी वो देखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर उतरता है, अब क्यों नहीं उतर रहा है? तो मक्के के काफर सरदारों ने कहा कि मोहम्मद के शैतान ने मोहम्मद का हाथ छोड़ दिया। तो अल्लाह ने आपकी शान में, आपकी तारीफ में, आपके मर्तबे में ये कुरान की आयत नाज़िल की, वरफ़ाना लका ज़िक्र। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जो है काफरों की बातों को आप ध्यान न दें, उनसे जो है बददिल न हो जाएं। हमने तो आपका इज्जत बढ़ा दी है, हमने आपके मुकाम को बुलंद कर दिया है, हमारे नाम के बाजू हमने आपका नाम लगा दिया है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपका इत्तिबा करें, आपकी सुन्नतों को जिंदा करें। नबी जी, जो आपकी सुन्नतों को जिंदा करेगा, जो आपकी सुन्नतों से अपनी जिंदगी को रंगेगा, रंगना है, अल्लाह के रंग में रंगना है, अल्लाह का मुतालिबा है, अल्लाह का मुतालिबा है कि ईमान वालों अल्लाह के रंग में रंग जाओ, नबी के रंग में रंग जाओ। ईमान का तकाजा है, अल्लाह की तरफ से मुतालिबा है कि ईमान वालों से कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह की रजा को हासिल कर लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग जाओ और हुजूर की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में ला लो, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मोहब्बत दिल के अंदर पैदा कर। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। नबी जी, आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इताअत करें, आपकी इत्तिबा करें, आपकी सुन्नतों को जिंदा करें। जो आपकी इताअत करेगा, इत्तिबा करेगा, आपकी सुन्नतों को जिंदा करेगा, हम उनसे मोहब्बत करेंगे और हम उनके गुनाह माफ कर देंगे, इसलिए कि हम गफूरुर रहीम हैं। हम जो है गुनाहों के माफ करने तो कल्बे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से चाहा जा रहा है कि अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन हमारे दिलों के अंदर आए। किसी से कुछ नहीं होता, मेरे अल्लाह से सब कुछ होता है। पालने वाले अल्लाह हैं, खिलाने वाले अल्लाह हैं, नफ़े के देने वाले अल्लाह हैं, नुकसान के देने वाले अल्लाह हैं, इज्जतों के देने वाले अल्लाह हैं, जिल्लतों के देने वाले अल्लाह हैं, सेहत के देने वाले अल्लाह हैं, बीमारी को देने वाले अल्लाह हैं, जिंदगी के देने वाले अल्लाह हैं, मौत के देने वाले अल्लाह हैं। किसी से कुछ नहीं होता, एक अल्लाह से सब कुछ होता है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ही का सब कुछ है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ही का सब कुछ है। ये दोस्तों दिल की आवाज बन जाए। क्या बनाना है? दिल की आवाज बन जाए, ये दिल का यकीन बन जाए।
जब कोई हाल आए, उलमा ने फरमाया कि तुम्हारे दिल के अंदर जो है अल्लाह की जात से यकीन आ गया, उसका सबूत क्या है? उलमा ने फरमाया जब भी कोई हाल आए, पहली निगाह तुम्हारी जहां जाती है वो तुम्हारा इला है, तुम्हारा रब है, तुम्हारा यकीन है। तकलीफ आई, बीमारी आई, ये नहीं कि भाई दवा खाने ले जाओ, कि भाई अश्विनी क्लिनिक को लेके जाओ, शिफा क्लिनिक को लेके जाओ, भाई वो डॉक्टर साहब के डॉक्टर अल्ताफ के पास लेके जाओ, जबान से ये नहीं करते। बल्कि भाई जब आदमी बीमार हो तो फौरन ये कहे कि जो है ये बीमारी अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह की तरफ से आई है। शिफा भी कौन देने वाले हैं? डॉक्टर साहब के हाथ में है। क्यों जी? गोलियों में शिफा है। डॉक्टर में शिफा होती तो कोई डॉक्टर बीमारी नहीं होता, कोई डॉक्टर मरता ही नहीं, वो डॉक्टर भी बीमार होता है। शिफा किसके हाथ में है? फौरन आदमी प्राइवेट मर्कज में बोलते हैं कि कोई बीमार हो जाए तो देखो 8 अमल करो। कितने अमल करो? 8 अमल करो। सबका दो पहले, इमरजेंसी हेल्प, एम्बुलेंस आती है क्या? इमरजेंसी, वही सीरियस है पेशेंट है, तो फौरन इमरजेंसी हेल्प अल्लाह की लेना है तो सबसे पहले क्या करना है? फौरन सदका। हम लोग थे जो है बंगले वाली मस्जिद में जो है वो मौलाना याकूब साहब का बयान हो रहा था फजर में, तो मौलाना याकूब साहब फजर के दरमियान बयान में कहने लगे बुजुर्ग बीमार हुए, उनके शागिर्दों को बुलाया और कहने लगे जी वो अल्लाह मुझे सदका दिलवाना चाहते हैं, इसके लिए बीमारी आ गई। ये बीमारी जो आती है ये सदका दिलवा लेने के लिए आती है, ये लो बेटा ये सदका दे दो, इंशाअल्लाह मुझे शिफा हो जाएगी। अब एक मरतबा दिया, एक आध दिन में सही नहीं हुए, फिर कहने लगे जी वो अल्लाह के यहाँ जो मिकदार है सदक़े की वो पूरी नहीं हुई, वो दोबारा दो। इस तरह 3 मरतबा देने के बाद शिफा हुई। फिर वो कहने लगे कि अब वो मिकदार पूरी हो गई, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। तो बीमार होते ही फौरन हुजूर की हदीस हमारे सामने आ जाए, अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया अपने बीमारियों का इलाज सदक़े से किया करो, दवा से, तो ये डॉक्टर से। ये है हदीस में, कहीं हदीस में है कि जो है सदक़े से अपनी बीमारियों का इलाज किया करो। तो सबसे पहले सदका देना, उसके बाद जो है अच्छी तरह से वुज़ू करना है, 2 रकात नमाज पढ़नी है। एक सहाबी वो पेट के दर्द से लौट रहे हैं तो हुजूर का गुजर हुआ, हुजूर ने पूछा क्या बात है अबू दर्दा, क्या हो गया, क्यों लेट रहा है, लौट रहा है? तो कहा या रसूलुल्लाह पेट में दर्द है। तो आपने फरमाया उठ नमाज पढ़, नमाज में अल्लाह ने शिफा रखी है। उठ नमाज पढ़, नमाज में शिफा है। हज़रत हंज़ला कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी आती, कोई जो है बीमार होते तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। शेखुल हदीस ने लिखा है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का ये तरीका रहा है कि जब भी कोई परेशानी आती, जब भी कोई हाल आता तो अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब बंदे वो नमाज में मशगूल हो जाते, अल्लाह की तरफ मशगूल हो जाते, अल्लाह से मांगते। तो जो है सदका देना, नमाज पढ़ना, सूरे फातिहा में अल्लाह ने शिफा रखी है, जैतून में अल्लाह ने शिफा रखी है, कलौंजी में शिफा रखी है, जमजम में शिफा रखी है और शहद में शिफा रखी है। 4 चीजें, 4 अमाल, इसमें शिफा है। तो बरके कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकसद ये है कि हमारे दिलों के अंदर ये यकीन आ जाए कि किसी से कुछ नहीं होता, मेरे अल्लाह से सब कुछ होता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कामयाबी है, गैरों के तरीके में 100% नाकामी। अब ये यकीन आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। उम्मत में चल फिर के इस यकीन की दावत देना है। दुकान वाले को जाके कहना है कि भाई तेरी दुकान तुझे नहीं पालती, तू तेरी बीवी को नहीं पालता, तेरे बच्चों को नहीं पालता, तेरे वालिदैन को तू नहीं पालता, बल्कि तुझे पालने वाले, तेरे बीवी बच्चों को पालने वाले और सारी मखलूक को पालने वाले कौन है? अरे सब मिलके बोलो भाई, ये यकीन है। अब ये यकीन आ जाए, इसके लिए जो है लोगों जो है वो ये यकीन वो 4 लाइन की मेहनत करने से आता है। अल्लाह की जात से होता है,
अल्लाह ही सब कुछ करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में 100% कामयाबी है। वो 4 लाइन की मेहनत करने से यकीन पैदा हो, और जिसके दिल में यकीन पैदा हो गया, जैसे मैंने वो कुरान की आयत पढ़ी, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने दिल को बना लिया, अंदरून को बना लिया, इस यकीन को बना लिया, वो तो कामयाब हो गया, बामुराद हो गया। जो कुछ अल्लाह ने सबसे पहला मेहनत इस यकीन को बनाने की, वो जो कुछ कुरान हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अल्लाह अल्लाह के रसूल ने जो नाजिल किया है, जो कहा है, उसकी हमें दावत देना है और उसकी दावत को सुनना है। अफला यंज़ुरू इला समाई फौक़कुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फुरूज। ऐ मेरे बंदो, अपना सर को उठाओ, जरा आसमान की तरफ तो देखो, देखो इसको हमने बगैर कोई पिल्लर के, बगैर कोई सपोर्ट के कैसा हमने खड़ा कर, कोई कमी कोई कजी हमने इस आसमान में नहीं छोड़ी, बगैर मैन पावर के, विदाउट मटेरियल, विदाउट मैन पावर। क्या भाई, मैन पावर भी इस्तेमाल नहीं हुआ इतना बड़ा छत बनाने के लिए, 30-40 की साइड बनाने के लिए कितने मिस्त्री चाहिए और कितने हेल्पर चाहिए, कितने लेबर चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितनी सीमेंट चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा छत बना दिया। तो अल्लाह ताला ने अब ये एक शामियाना मामूली सा, ये क्या साइज है इसका, चंद मीटर का खड़ा करने के लिए वो 4 पोल इसकी सपोर्ट में, वो बगैर पोल के अल्लाह ने इतना बड़ा छत। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, उसको देखो, गौर व फिक्र करो, अल्लाह की अजमत को सोचना, अल्लाह की बड़ाई को सोचने से अल्लाह की जात से होने का यकीन दिल में पैदा होता है। अल्लाह की जात का यकीन पैदा करने के लिए अल्लाह की अजमत को सोचना, अल्लाह की बड़ाई को सोचना, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में गौर व फिक्र करना। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने तारुफ के लिए, मेरे बंदों के दिलों में मेरे यकीन का पैदा करने के लिए मैंने 4 बड़ी बड़ी मखलूक बनाई हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने आसमान बनाया, मैंने जमीन बनाया, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद को बनाया। ये 4 चीजें मैंने बड़ी बड़ी बनाई हैं, इसलिए बनाई हैं ताकि मेरे बंदे मुझे पहचान लें कि ये खुद नहीं बनी, इनका बनाने वाला कोई है, और इनके बनाने वाले ने इन्हें बेकार नहीं बनाया है, एक मकसद के लिए बनाया है, और जो है बना के इसको आजाद नहीं छोड़ दिया है, बल्कि उसको अपने कंट्रोल में रखा है। ये सूरज तो इतना छोटा सा हमें लगता है, ये दुनिया से कई लाख गुना बड़ा है। जमीन कितनी बड़ी है, वो कितनी इसकी जो है विड्थ है, कितनी इसकी लेंथ है। तो फरमाया ये सूरज इतनी बड़ी मखलूक अल्लाह ने बनाई है कि इस दुनिया से कई लाख गुना बड़ा है। और वो जब तुलू होता है, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के कदमों में सजदा करता है, अल्लाह से पूछता है या अल्लाह आपका क्या हुक्म है, मशरिक से तुलू होना है, मगरिब से तुलू होना है। तो रोजाना अल्लाह सूरज को हुक्म दे रहे हैं कि मशरिक से तुलू होना है, मशरिक से निकलना है, मगरिब में तुझे गुरूब होना है। एक दिन आने वाला है कि अल्लाह ताला कहेंगे आज मशरिक से नहीं है, आज हुक्म ये है कि तू मशरिक से नहीं निकलेगा, वो मगरिब से निकलेगा। वो कौन सा दिन होगा? सब बोलो भाई, क़यामत का दिन होगा, दुनिया की बर्बादी का दिन, दुनिया के खात्मे का दिन। तो पहला सबब ईमान और यकीन को बनाने का वो जो है कुरान पाक की आयतें, अहादीस मुबारका जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुई, उसकी खूब हमें दावत देना है, उसकी दावत को हमें सुनना है। दूसरा सबब ईमान और यकीन को बनाने का अनबिया के वाक़ियात है। किसके वाक़ियात हैं? कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको पिछले नबियों के वाक़ियात इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपके दिल में, आपकी उम्मत के दिल में हमारी जात से होने का यकीन पैदा करने के लिए। मरियम के कमरे में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लेकर पहुंचे तो मरियम के कमरे में क्या देखते हैं कि ऐसे फल रखे हुए हैं जो बेमौसम के हैं। हैरान हो गए, चौकन्ना हो गए। अरे मेरी जिम्मेदारी है, मशवरे से मेरा तय है, तेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता, मरियम मेरी जिम्मेदारी खाना लाने की। और ये फल मरियम न ये
बाहों में है, न मंडियों में है, न गाड़ियों में है, न दुकानों में है। अरे मरियम तेरे फल ये पास कहाँ से आए? तो मरियम ने क्या कहा? अरे बोलो भाई, ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए। और अल्लाह ताला ने आयत मुकम्मल करते हुए यूं कहा, वल्लाहु यरज़ुक़ु बिगैरि हिसाब, कि हम जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी देते हैं। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात, अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने निकलकर हमें इसकी दावत देनी है, उसको सुनना है, ताकि अल्लाह की ज़ात से होने का। तीसरा सबब वो सहाबा के वाक़ियात, और चौथा सबब ईमान को सिफात के साथ बयान करना है। ईमान को कैसे बयान करना? अरे बोलो भाई, नींद आ गई, अब छुट्टी होने वाली है, जल्दी बोलो। ईमान को सिफात, ये बदू आए, एक गांव के रहने वाले सहाबी आए, उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे समझूं मेरे अंदर ईमान है? क्या सबूत है, क्या दलील है कि मेरे अंदर ईमान है? तो इतने मुश्किल सवाल का जवाब इमामुल अंबिया ने 2 लफ्जों में दिया। आपने फरमाया, नेकी तुझे खुश कर दे, गुनाह तुझे रंजीदा कर दे, अगर तेरे दिल में एहसास पैदा हो रहा है, समझ तेरे अंदर ईमान है। इसके लिए उम्मत में चल फिर के इस यकीन की दावत देना, तालीम के हलकों में बैठकर जो है ईमान के फजाइल को सुनना, कि इस ईमान पर अल्लाह मुझे दुनिया में क्या इनाम देंगे, आखिरत में क्या इनाम देंगे, और दोस्तों जो है और रात जो है इसकी मशक करना, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में गौर व फिक्र करना और अल्लाह से दुआएं मांगना। और दूसरी सिफत कौन सी भाई? अरे बोलो भाई, सब जमाते हैं अक्सर इसमें माशाल्लाह। दूसरी सिफत नमाज। नमाज का क्या मतलब है? नमाज का क्या मकसद है? कि हमारी पूरी जिंदगी सिफ्त सलात पर आ जाए, हमारी पूरी जिंदगी सिफ्त सलात पर आ जाए। कि जिस तरह हम नमाज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा कर रही, और बाकी हमारी जो है जरूरतें, बाकी हमारी जो है मकसद की जिंदगी के अल्लाह के हुक्म नबी की सुन्नत पे आए, लाएंगे भाई इंशाल्लाह। क्या बात उधर हो रहा है? अभी 5 मिनट बाकी है, थोड़ा सा मुझको जाओ, इधर कर, उधर मत करो, इधर है घड़ी मत। तो दूसरी सिफत जो है नमाज है। तो नमाज से क्या चाहा जा रहा है? कि जो है हम अपनी पूरी जिंदगी नमाज की तरकीब पे लाएं। जिस तरह नमाज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक अदा कर रहे हैं, और जो है इसी तरह से हमारी मुलाजिमतें, हमारी अपनी तिजारतें, हमारा अपना लेन देन, हाँ, ये सब का सब अल्लाह के हुक्म नबी की सुन्नत पे आए। और नमाज का दूसरा मकसद ये है कि हम जो है अपनी हाजतें नमाज के जरिए से, दुआ के जरिए से पूरी करने वाली बने। हम अपनी ज़रूरतें, हम अपने मकासद, ये जो है नमाज के जरिए से, दुआओं के जरिए से हम पूरे करने वाले बने। तो ये नमाज जिंदगी के अंदर आवे, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहली मेहनत, उम्मत में चल फिर के नमाज की दावत देना है, और तालीम के हलकों में बैठ के नमाज के फजाइल सुन के उसका यकीन पैदा करना है कि कोई हाल आए मुझे, सबसे पहले मुझे अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है, अल्लाह से मांगना है। दुआओं के जरिए से, नमाज के जरिए से हम अपनी हाजतों को पूरा करेंगे भाई। हाँ, और नमाज की मशक करना है, हमारी नमाज कबूल हो जाए, हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। इसके लिए उलमा को अपनी नमाज बताना है और सुनाना है। बताना भी है और सुनाना भी है कि भाई मेरी नमाज रुकू सही है नहीं है, सजदा सही है नहीं है। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाती कि जो है सजदे में 8 आज़ा का जमीन को लगे रहना जरूरी है। कितने आज़ा भाई? 8 आज़ा। 2 जो है तलवे, 2 घुटने, 2 हाथ और नाक और पेशानी। अब ये उलमा को बताना है। तो मौलाना मुफ्ती साहब जरा मेरी नमाज देखिए, मुफ्ती साहब मेरी नमाज देखिए। नमाज की मशक ये है कि उलमा को अपनी नमाज बताना भी है और उलमा को अपनी नमाज सुनाना भी है। मेरी सूरह फातिहा, मेरी औज़ू, मेरी बिस्मिल्लाह, मेरा तहियात, मेरा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम, ये दुआ मासूरा, दुआ कुनूत, मुझे उलमा के पास बैठ के इसको सिखाना भी है और सुनाना भी है और दुरुस्त है। और नमाजों में खुशू खुजू पैदा करना, नमाज के वाजिबात अदा हो रहे नहीं हो रहे है,
एक बधू आए हुजूर की खिदमत में, हुजूर के सामने नमाज पढ़ी, हुजूर ने अपनी ताजी ताजी निगाहों से उनकी नमाज को देखी, और जब वो साहब नमाज पूरी किए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी, फिर नमाज पढ़। अब वो बधू गांव के रहने वाले दूसरी मर्तबा नमाज पढ़ी, दूसरी मर्तबा भी हुजूर ने यही कह दिया तूने नमाज नहीं पढ़ी, फिर नमाज पढ़। फिर तीसरी मर्तबा उन्होंने नमाज पढ़ी हुजूर के सामने, हुजूर ने अपनी ताजी ताजी निगाहों से उनकी नमाज को देखा और कहा कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, फिर नमाज पढ़। और वो तीसरी मर्तबा में वो कहने लगे बधू के सहाबी कि या रसूलुल्लाह मुझे जैसी नमाज पढ़नी आती थी मैंने पढ़ ली, या रसूलुल्लाह आप बताइए कैसे नमाज पढ़नी। तो फिर आपने हदीस बयान की, फिर आपने फरमाया कि देखो नमाज ऐसी पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखो। हुजूर से अबू बकर ने नमाज सीखी थी और अबू बकर से अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नमाज सीखी थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर की नमाजों के हवाल किताबों में आए हैं कि वो ऐसे खड़े होते थे नमाज में कि हरकत नहीं होती थी, ऐसा मालूम होता था कोई एक लकड़ी है एक गाड़ दी गई है। इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा होता था कि हरम के अंदर परिंदे आकर बैठ जाते हैं, ये कोई दीवार है, ये कोई पोल है। ऐसी नमाज से पूरे मसले हल हो रहे हैं। बाग में पानी नहीं है, बंजर जमीन है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा गुलाम साहब से वजू कराओ, वजू किए, मुसल्ला बिछाए, अल्लाह से दुआ मांगी, क्या और दुआ मांगने के बाद तो काजी से कहने लगे उठाओ मुसल्ला, कुदाल मारो, कुदाल मारते ही वो बोरवेल की तरह से वो पानी के हुआ। नमाज जब नमाज आई सहाबा ने ईद बनाई, पूरी जिंदगी में सहाबा 2 मरतबा ज्यादा खुश हुए। उसमें एक मरतबा जब नमाज फर्ज हुई, यहूदियों ने पूछा आज कौन सी ईद है, ना रमजान ना बकरीद, क्यों इतनी खुश हो रहे हो, ईदों से भी ज्यादा खुशी है। फरमाया नमाज का तोहफा इमामुल अनबिया को 7 आसमानों पे बुलाकर मेराज अता करके ये गिफ्ट अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है। अब हमें कोई भी परेशानी आएगी हम परेशान नहीं होंगे, हम अपने अल्लाह से बात करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से अपनी जरूरत को सामने रखेंगे और नमाज के जरिए से अपने तमाम मसाइल हल करेंगे। सहाबा ने ईद मनाई तो यकीन था। अदूनी अस्तजिब लकुम, कुरान पाक में जो है अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस पाक में कि मेरे बंदो मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं। अल्लाह का हुक्म दुआ मांगने का, अल्लाह का वादा दुआ के कबूल करने। तो नमाज के जरिए से हमें अपने मसलों को हल करना करेंगे भाई अल्लाह ताला। अब इसके लिए 4 महीने निकल कर अल्लाह के रास्ते में हमें जो है इन सिफात को अपनी जिंदगी में लाना है। 4 महीने निकल कर इसे मश्क करना है। इंशाअल्लाह बयानात होंगे आज और कल, और तशकीलें होंगे, तकादे होंगे, मगरिब की नमाज के बाद खुसूसी बयान होगा। उस बयान में 4-4 महीने कौन कौन तैयार हैं पूछा जाएगा। सब लोग खड़े होके अपने नाम लिखाएं, अपनी जमात बंदी कराएं और अल्लाह के रास्ते में निकलकर इन 6 सिफात को अपनी जिंदगी में लाएं। करेंगे भाई? अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।